Okay, we are doing question number 13, page 45 in your books. Correct? Okay, read the problem. ये प्रॉब्लम है आपका, बराबर है. A glass manufacturing company has 4 production plants, P1, P2, P3, P4, producing 5,000, 8,000, 7,000, 10,000 items per day. The company has 3 storage locations, L1, L2, L3, having capacity of 7,000, 9,000, 18,000 items to accommodate every day. The transportation cost from factory to storage location in rupees per unit is given in the following matrix. ये cost का sum है, we are still on minimization. ये cost का sum है, so we are still on minimization. Are we clear? Now, this paragraph is important. Read. Though the cost of transportation from P4 to L1, P4 to L1, यानी कि ये this, though it has been given in the cost matrix, yet this route cannot be used due to certain operational constraints. That means what? It is prohibitive. ये भले दिया हो, but it is prohibitive. Determine an initial feasible solution using VAM from the above and also calculate transportation total transportation cost for this transportation schedule. Again, this also becomes very important. Why? Read carefully why it is important. Are they asking you to get optimality? Are they asking you to get optimality? Or are they only asking you to get VAM? जल्दी बताओ. रीडर क्या मालूम पड़ता है? पढ़नी आती है इंग्लिश? क्या मालूम पड़ता है रीड करके? Are they asking you to get optimality? No, they are only asking you to get feasible solution by VAM and calculate the cost for the same. Am I clear with this? With the problem being prohibitive. Clear? Now, sir, does this mean that we cannot find optimality in prohibitive? No, it does not mean that. We can find. So what I'll do is, I'll calculate the answer. I will give the answer for what they're asking in the question, and then I'll go a step ahead to give you what? Optimality also. But in exam, आपको ऐसा अगर question आया, तो optimality नहीं करना है. क्यों? Because they are telling you clearly, determine only feasible solution and calculate the cost. Are they asking you to get optimality? No. Clear with this? मैं फिर से clarify कर दूं. अपना प्रोहिबिटिव का और ऑप्टिमैलिटी ना निकालने का कोई लिंक नहीं है. देयर इज नो लिंक बिटवीन अ प्रॉब्लम बीइंग प्रोहिबिटिव एंड नॉट कैलकुलेटिंग ऑप्टिमैलिटी. एम आई क्लियर विद दिस? इट इज अ mere coincidence that they're asking like this. Okay, so let us start. What is the first step? What is the first step? We'll see whether problem is balanced or not. Correct? Let us start. वो पहला स्टेप है अपना. तो P1, P2, P3, what is the capacity? और P4 भी है ना. कैपेसिटी कितना है? ठीक है ना. इसका प्रोडक्शन यूनिट्स प्रोड्यूसिंग दिस, ये कैपेसिटी है. ओके, कितना है? 5,000, 8,000, 7,000 and 10,000. टोटल कितना है बताओ? जल्दी बताओ टोटल कितना? 30,000 है. एंड L1, L2, L3 डिमांड कितना है? डिमांड इज टोटल कितना है? 34. तो यहां P5 भी आएगा. The word capacity is used ना, but ठीक है, then I'll to avoid confusion I will not use that word. ठीक है, it's just a mere of matter of choosing right words.
तो ऐसा बात है, तो अगर आपको कंफ्यूजन है तो आई विल नॉट यूज इट, आई विल यूज प्रोडक्शन एंड कैपेसिटी. ठीक है, अब ठीक है. ओके, डोंट वरी. यहाँ पे इन दिस प्रॉब्लम द कॉन्टेक्स्ट इन विच द वर्ड कैपेसिटी इज यूज्ड, द कॉन्टेक्स्ट इज द डिमांड. क्लियर? ओके, सो व्हाट्स द नेक्स्ट स्टेप? अरे व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? IFS by VAM. That's the next step. Clear? उसके अंदर P1, P2, P3, P4, P5, L1, L2, L3, then production. And अच्छा, I have a suggestion for you guys, आपके भले के लिए in this problem. अब first of all, what is the cost? First of all, 2, 7, 4, come in, 3, 3, 1, 5, 4, 7. Now listen carefully. P4 L1 का कॉस्ट कितना देके रखा है? 1. But don't take it as 1. Take it as capital M. For what, Ray? People who have done assignment with me, what cost do we assign to prohibitive places, prohibitive combinations? We assign it M. Yes or no? Capital M for maximum cost, so that it doesn't get selected. Am I clear with this? तो give it as M. तो सर वैम कैसे करेंगे M के साथ? Don't worry. अरे वैम में क्या होता है? मिनिमम सेकेंड मिनिमम. यस और नो? ये तो हमेशा मैक्सिमम रहेगा ना, ये तो आएगा ही नहीं. करेक्ट. और यहाँ पर भी ये 0 0 आएगा, बिकॉज ये क्या है? डमी है. तो यहाँ भी अपना क्या, while doing वैम इट विल बी लोएस्ट सेकेंड लोएस्ट. कहीं पे M आएगा ही नहीं. तो डोंट वरी, M कभी कंसिडर होगा ही नहीं. वंस यू प्लेस M देयर, इट विल ऑलवेज बी इग्नोर्ड, because that is the way the system of VAM is devised. So, but what about optimality then? Optimality के अंदर भी it will never get selected, because that is the way system works. Okay, don't worry about it. But फिलहाल के लिए मेरा जो suggestion था वो ये था आपके लिए कि don't use the अपना capacity demand in thousands. I mean, don't write 5,000, 8,000, 7,000. Write 5, 8, 7 and 10. And then 4. Sir, why like this? Because it will be too big. There will be too big numbers here to write in circle. So in the end, we'll multiply it by 1,000 to get the answer. Are we clear? But फिलहाल के लिए अपना काम आसान करने के लिए we'll write in thousands. Are we clear with this? Okay. तो अभी इसका डिमांड कितना था? 7, 9, 18. 7, 9, 18. अच्छा, ऐसा हम कब नहीं कर पाते बताओ? When we would not have taken in thousands. जहाँ पे कहीं पे डिमांड होता ना 7,500, 9,250, तो वहाँ ये सब काम मत करना. वहाँ don't take it as 7,000, 9,000. Then you have to go by the actual numbers. But here everything is in thousands. Okay, so what's the next thing? Penalties, correct? Okay, so let us start in penalties. Lowest, acha, if you are getting confused with, you may get confused because the numbers seem same, so I am drawing lines here. To avoid confusion. So only look for lowest, second lowest within these, within these 4 walls. Okay. यहाँ देखो 2 and 4, 1 and 3, 4 and 5, 6 and 2, 0, 0, 0, 2, 0, 3,
0 1. What's the highest penalty? 4. Correct. Lowest cost 2. तो 10. Yes. समझ में आ रहा है क्या मैडम? आप तो ऐसा देख रहे थे, फर्स्ट टाइम कर रहे हो मैम. समझ में आ रहा है ना? ओके तो ये कितना हो जाएगा 8 और ये कितना हो जाएगा 0. दिस ऑटोमेटिकली गेट्स कैंसल्ड. ये 0 हो गया ना. देन अगेन पेनल्टीज 2 and 4, 3 and 1, 4 and 5. ये कैंसल्ड है. 0 0. देन 0 2, 0 3, 0 1. Highest penalty is 3. Lowest cost is 0. You can allocate 4 there. This becomes 5. This becomes 0. Cancel. Correct? Then again penalties. 2 4 2, 3 1 2, 4 5 1. ये cancel है. ये भी cancel है. यहाँ पर 2 3 1. बाद में यहाँ पर 3 4 1. यहाँ पर 4 and 1 3. Highest is 3. Lowest is 1. You can allocate 8. मज़ा आ गया. 0 0. This get cancelled. This gets cancelled. Clear with this? डबल कैंसिलेशन हो रहा है. हाँ तो ऑप्टिमैलिटी करते वक्त अपने को क्या आएगा? डिजेनरेसी आएगा ऑप्टिमैलिटी करते वक्त. बट यहाँ पूछा नहीं है ऑप्टिमैलिटी. तो ये एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है आपको. बट सर ये तो डीजेनरेट है. अरे बट जब डीजेनरेसी कब टेस्ट करते हैं? ऑप्टिमैलिटी करने के पहले. यहाँ पूछा ही नहीं है. यहाँ सिर्फ क्या पूछा है? वैम निकालो और उसका आंसर निकालो. तो वैम तो हो जाएगा पूरा. वैम पूरा करने में कोई तकलीफ नहीं होती है डीजेनरेसी के अंदर. यस और नो? तो ये भी कैंसिल हो गया. चलो 2 7 5 5 4 1. ये कैंसिल है. ये कैंसिल है. और इधर 2 5 3 and 4 7 3. 5 is highest, 2 is lowest cost. 5 ये 0 हो गया और ये 2 रह गया. ये कैंसिल हो गया. अब स्टॉप गिविंग पेनल्टीज बिकॉज ओनली 1 रो इज रिमेनिंग. तो यहाँ 2 आ जाएगा. ये 0 हो जाएगा. ये हो जाएगा 5 and 5 5. आ गया आपका आंसर. ये भी 0. ये भी 0. अब एग्जाम में क्या करना है मैं आपको पहले बता रहा हूँ. एग्जाम में क्या करना है? एग्जाम में पहले क्या करना है? पहले टेस्ट करना है कि बैलेंस्ड है कि नहीं है. अनबैलेंस्ड है. अनबैलेंस्ड के बाद में आईएफएस बना लेने का वैम से. अच्छा ये लिखना पड़ता है अपने को. मैं बार बार भूल जाता हूँ. क्या? डिमांड और प्रोडक्शन नॉट इक्वल टू कैपेसिटी, देयरफॉर प्रॉब्लम इज अनबैलेंस्ड. ऐसा लिखने का. तो एग्जाम में क्या 1-2 मार्क्स काट लेगा एग्जामिनर. आर वी क्लियर? ये अनबैलेंस था ना तो वी इंट्रोड्यूस दिस 4000. करेक्ट. तो ये समझ में आ गया आपको हर एक को. अब एग्जाम में क्या करना है आपको? उसके बाद क्या निकालना है? डायरेक्टली. समझा सर? बट हम नेक्स्ट स्टेप तो करते हैं कि डीजेनरेसी है कि नहीं है. अरे वो किसके लिए करते हैं? ऑप्टिमैलिटी के लिए करते हैं. अभी के लिए क्या पूछा है एग्जाम में? डू वैम एंड कैलकुलेट टोटल कॉस्ट फॉर द सेम. क्लियर? वही कर रहे हैं हम लोग. अभी यहाँ पे क्या करने का? 2 into 5000 करते वक्त लिखने का 5000 इधर प्लस 1 into 8000 प्लस 5 into 2000 प्लस 4 into 5000 प्लस 2 into 10,000 and lastly plus 0 into 4000. 10 8 18 18 28 28 48 48 68,000 आ रहा है आंसर. इज इट? प्लीज वेरीफाई. Are we getting 68,000? डन. प्रॉब्लम इज ओवर. ये 7 मार्क का सम है. 7 मार्क का. Am I clear with this? If it comes in exam, it's a 7 mark answer. Minimum 7 marks. Clear? Don't worry, I'll give you screenshots. You're taking photo ना मैडम? मैं आपको भेज दूंगा स्क्रीनशॉट इसके.
वो मच रियली मच मोर क्लियर, ठीक है क्या? तो अभी आपके फोटो लेंगे तो ब्लर आएगा, ये आएगा, वो आएगा. आई सेंड स्क्रीनशॉट ऑन द ग्रुप. आई गिव इट टू योर सीआर, शेल गिव इट टू यू गाइस. ओके, तो यहाँ ध्यान देना, ये आंसर वो पूरा हो गया. बट अगर एग्जाम में ऐसा आया तो फाइंड ऑप्टिमैलिटी बाय मोडी मेथड, तो क्या करने का इसमें? देन यू हैव टू गो अहेड. अभी के लिए जो क्वेश्चन द वे इट इज आस्क्ड इन द बुक, द आंसर इज ओवर. बट आई एम सेइंग अगर एग्जाम में क्या आ गया, फाइंड ऑप्टिमैलिटी बाय मोडी मेथड, तो क्या करने का? तो आवर नेक्स्ट स्टेप इज व्हाट? ऑप्टिमैलिटी डीजेनेरेसी टेस्ट. काउंट एक्चुअल एलोकेशंस, count them, 1 2 3 4 5 6. do m plus n minus 1. कितना m है? 5 plus 3 minus 1. you require how many? less है ना, तो therefore there is degeneracy. क्लियर? अभी फिलहाल के लिए विल कॉपी द सेम सॉल्यूशन फॉर मोडी मेथड. फाइव थ्री फाइव, सॉरी 5 3 2 3 5. 7 3 4 6. 4 1 7 2. 5 8 7 10 4. 5 here, 8 here, then 2 here, 5 here, 10 here, and okay 4. यही था ना? This was it, correct? This was it. Yes or no? Okay. तो ये क्या है बताओ? ये है डीजेनरेसी. क्या है ये? डीजेनरेसी है ना इधर. तो you have to put epsilon somewhere. Least cost. But you can't put it here. Why? और it is not independent. दिखता है क्या? If you place epsilon here, what it will be? It will be independent? No, it will not be independent. So you cannot place it there. Sir, but I have another place available with the 0. अरे yes, you have. Test that also. यहाँ पे. Can you place it here? Test कर लेने का. Sometime it is 6-point loop also. ऐसा 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 अटक गया. ऊपर नहीं, यहाँ पे अटक गया. तो ये independent है. You can place epsilon here. Are we clear? Are we clear or not? Okay. Then we write two equations. What two equations? For allocated cells, cost equal to u plus v. Therefore, v is equal to cost minus u and u is equal to cost minus v. And for unallocated cells,
डेल्टा इज इक्वल टू कॉस्ट माइनस यू प्लस वी, करेक्ट। तो देखो इधर 0, 2 माइनस 0, अब ये तो यू कांट यूज दिस, बिकॉज दोनों गायब है, ये भी गायब है, ये भी गायब है, तो सर डीजेनरेसी है इसलिए नहीं, उसके लिए नहीं, वो अपन रेक्टिफाई कर लिया है। y माइनस 2, 4 माइनस 3, go row wise, even this you cannot use because both are missing, come down, can you use this 0 minus 1 minus 1, 0 minus minus 1 1, 2 minus 1 1, 1 minus 1, समझा? समझ में आया क्या हर एक को? ओके, तो अभी फॉर अनएलोकेटेड सेल दिस माइनस दिस इज प्लस 6, this minus this is plus what? 3. This minus this is plus 1. This minus this is plus 2. 7 minus 3 minus 1 is plus 3. m तो हमेशा प्लस ही आएगा, बताओ क्यों? अरे मैक्सिमम नंबर प्लस दिस सॉरी माइनस दिस, सो इट्स लाइक 1 crore minus 3 rupees इज ऑब्वियसली पॉजिटिव, तो m हमेशा क्या आएगा? प्लस आएगा। तो इसीलिए मैंने क्या कहा था आपको कि m कभी सेलेक्ट होएगा ही नहीं। क्लियर? 6 माइनस 1 माइनस 1 प्लस 4। अब देखो मजा आ गया, 0 माइनस 1, 0 माइनस माइनस 1 कितना होता है? 1, माइनस 2 इज माइनस 1, अरे यस, तो समझिए क्या? बट अभी बहुत लोग होंगे कंफ्यूज कि सर आपने कहा था यहाँ डालते नहीं एप्सिलॉन। अरे डालते नहीं क्योंकि यहाँ तीनों एलोकेशन है। अब जब मैं यहाँ पर सर फिर आप एलोकेशन क्यों कर रहे हो? अब जब मैं यहाँ पे एलोकेशन करूंगा, व्हेन आई विल मेक एलोकेशन हियर, सम ऑफ देम विल मूव आउट ना, एटलीस्ट वन ऑफ देम विल मूव आउट, सो लूप बनेगा ही नहीं। समझ में आया डिफरेंस क्या है? ओके, तो आई वांट प्लस हियर, माइनस प्लस माइनस, लुक एट द नेगेटिव साइड, as पहले लिख लो, as there is negative delta, optimality is not reached. Change equal to what? Change क्या आएगा? 2 या 4? 2. Change will be 2. समझ में आया? बट सर ना लूप में एप्सिलॉन नहीं आ रहा है। अरे मत आने देना, कोई रूल नहीं है कि एप्सिलॉन आएगा लूप के अंदर। There is no such rule. Are we clear? Treat epsilon as any other allocation. तो change क्या है? 2. We have to make this again with this. तो let us start. ये क्या आएगा? P1, P2, P1, P2, P3, P4, P5, L1, L2, L3, प्रोडक्शन, ये कैपेसिटी, बाद में V एंड U। व्हाट्स द कॉस्ट? 2, 7, 4, 3, 3, 1, 5, 4, 7, M, 6, 2, 0, 0, 0, 7, 9, 18, 5, 8, 7, 10, 4, 34. Now, what's the change here? Is there any change here? अरे चेंज जो है 2, ये अप्लाई करना है क्या इधर? नहीं, तो ये ऐसे का ऐसा आएगा 5. देयर इज नो चेंज एट दिस प्लेस, ये भी सेम आएगा 8. देन 5, यहाँ पे 2 माइनस 2 करना है, तो दिस विल बिकम अनएलोकेटेड. यहाँ क्या करना है? 5 प्लस 2, यहाँ कितना हो जाएगा? 7. यहाँ कोई चेंज नहीं है, कम हियर, नो चेंज, नो, अच्छा डेल्टा था ना इधर,
डालना भूल गए थे अपन। बाद में ये भी कोई चेंज नहीं है तो यहाँ भी ऐसा ही आएगा। यहाँ पर ये प्लस है ना, 0 + 2, वाई 0 रे, देयर आर नो यूनिट्स हियर, दैट्स वाई 0 यूनिट्स। 0 यूनिट्स प्लस 2 कितना हो जाएगा 2, 4 - 2 2, एंड एप्सिलॉन विल रिमेन एज इट इज। आर वी क्लियर? बिकॉज वहाँ पे कोई चेंज नहीं है। तो अभी देख लो, एक टेस्ट कर लो एक बार। यहाँ 5 चाहिए था 5 है, 8 चाहिए था 8 है, 7 चाहिए था 7 है, 10 चाहिए था 10 है, 4 चाहिए था 4 है। ये एप्सिलॉन को वैसे भी 0 होता है एप्सिलॉन तो। 5 + 2 7, 7 + 2 9, and 8 + 10 18. It is getting verified, or it is satisfying, it is feasible. So come down, again write what the two equations for allocated cells. Cost equal to U plus V, therefore V is equal to cost minus U, and U is equal to cost minus V. For unallocated cells, delta is equal to cost minus U plus V. देखो इधर 0 2 बराबर है। बाद में you can't use this, you cannot use this, you cannot use this either, you can use this but ना 0 - -2 कितना होता है? Sorry, 0 - 2 is -2. This will be 2, this will be 2, correct? 2 - 2 क्या होगा? सॉरी यहाँ पे देखो, अभी 1 - 2 कितना होगा? -1। 1 - 2 is -1। 2 - 2 कितना होगा? 0। 4 - 2 कितना होगा? 2। अभी क्लियर? तो 7 - 0 - 2 + 5, 4 - 0 - 2 + 2, 3 - -1 4, 4 - 2 2, 4 - 2 2, 5 - 2 - this is +1 +4, so +3, sorry my mistake, +3, but it is still plus, ये प्लस ही होगा। 6 - 0 - this प्लस, सब प्लस आ गया। As there is no negative delta, optimality is reached. ओके, सो ये क्या हो जाएगा? टोटल कॉस्ट निकालो। टोटल कॉस्ट इज 2 × 5000 प्लस 1 × 8000 प्लस 4 × 7000 प्लस 2 × 10,000 प्लस 0 × 2000 प्लस 0 × 2000 प्लस 0 × एप्सिलॉन। तो इट विल बी 10 + 8 18, 18 + 28 कितना होता है? कितना आ रहा है टोटल आंसर? 66। ये आपका फाइनल आंसर है। बट आप कब करेंगे एग्जाम में? व्हेन दे आर आस्किंग टू डू व्हाट? ऑप्टिमैलिटी। आर वी क्लियर? आर वी क्लियर? आंसर इज ओवर। आपको इसका स्क्रीनशॉट मिल जाएगा, चाहिए तो फोटो भी खींच सकते हैं, बट आपको मिल जाएगा स्क्रीनशॉट। क्लियर? तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर, क्या है? क्वेश्चन नंबर 13 हो गया, बराबर है। अब एक काम करो, 14 पढ़ो और खुद करने का कोशिश करो, और जो पूछा उतना ही करेंगे। मैसेज ICT हैज 3 प्लांट सिचुएटेड एट चेन्नई at Chennai, Nagpur, Udaipur, having monthly manufacturing capacity of 1600, 1200, 1700 units respectively. 3 plants supplying finished products to 4 warehouses in Mumbai, Delhi, Hyderabad, Kolkata, having monthly demand of 1000, 1200, 800, 1200 respectively. Transportation cost from plants to warehouses as follows.
The shipment from Chennai to Hyderabad and Nagpur to Delhi are not possible. क्या Chennai to Hyderabad? Chennai to Hyderabad not possible. And Nagpur to Delhi, Nagpur to Delhi not possible. ये both are prohibitive. Due to operational problems. Determine the IBFS by VAM and calculate total optimal transportation cost. Am I clear? So start doing it yourself. Clear?